Bismillah Rahman Rahim and Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Paper Vault, where we are solving past paper questions for IGCSE Physics 0625. Currently, we are solving past paper questions for paper 2, and we've covered almost 8 topics up till now. So today, inshallah, we are starting the new topic, that is turning effect and conditions for equilibrium. So just let's start, but before we start, kindly like and subscribe the channel, and if you have any queries, kindly comment below. Thank you. Let's start. Okay, now question 1 states that a weightless beam is balanced on a pivot as shown. Forces PQR act on the beam. Which equation is correct? Okay. So what they are telling us is that the weightless beam is balanced on a pivot. ठीक है जी? And there are 3 forces P, Q and R. This is the force P, this is the force Q, and this is the force R. Okay. Which equation is correct? Basically, these are equations for the moments. ठीक है? अच्छा, we have to understand 2 things. That number 1, the beam is weightless. It has no weight. Okay. Number 2, we have to locate the pivot. So this is our pivot. And number 3, we have to understand what a weightless beam that is balanced on a pivot means. Something that is balanced will be in equilibrium. Okay. This is going to mean that resultant force acting on the beam is 0, and resultant moment acting on the beam is 0. So what does resultant force being 0 means? That the upward force is equal to the downward force. ठीक है जी? And what does the resultant force being 0 means? That the clockwise moment is equal to the anti-clockwise moment. ठीक है जी? तो ये चीजें, these things are established when they say that it is balanced on the pivot. ठीक है? अच्छा, what is moment? Moment is the product of force into the perpendicular distance from this force. ठीक है जी? So if we see that there are 3 forces P, Q and R, so this is the force P, the perpendicular distance of this force, yeah, we should write this as well, from the pivot. So the perpendicular distance of this force from the pivot is D. ठीक है जी? And this is the force Q, and the perpendicular distance of this force from the pivot is B. Now this is the force and this is the perpendicular distance. ठीक है जी? This is B. And for the force R, which is in the downward direction, the distance, perpendicular distance from the pivot is A. ठीक हो गया जी? अच्छा, now what we have to do is we have to establish which are the clockwise moments and which are the anti-clockwise moments. So this seems to be a clockwise moment. This seems to be an anti-clockwise moment. And Q might be a clockwise moment as well. ठीक है? तो अब इनके moments कैसे हम decide करेंगे? Clockwise is equal to anti-clockwise. ठीक है जी? तो R into its perpendicular distance A is the moment this force is creating, plus Q and the perpendicular distance B is the force, is the moment that this force is creating. ठीक है जी?
and P into the perpendicular distance D is the moment created by this force. अच्छा मैंने इसको गलत लिख दिया, sorry. And this is the clockwise moment. अच्छा, now what is going to happen is, अगर आप यहाँ पे देखो तो in the first option P का perpendicular distance C कहा गया है, which is wrong because the perpendicular distance of the force P from the pivot is clearly D. So यहीं पर ये ऑप्शन आपका गलत हो गया. फिर B में भी यही बात की गई है तो ये ऑप्शन यहाँ गलत हो गया. C is P into D, Q into B and R into A. तो ये ऑप्शन तो ठीक है, मगर ये दोनों जो हैं फोर्सेस वो इकट्ठे नहीं हैं, क्योंकि दिस इज एन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एंड दिस इज क्रिएटिंग अ क्लॉकवाइज मोमेंट. तो ये दोनों एक जगह नहीं आ सकते. वेयर एज ऑप्शन डी ही रह गया है चूंकि, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है. परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस सबके ठीक है. और जब अगर आप इस ऑप्शन को यहां ले आओ, सॉरी क्यू के ऑप्शन को यहां ले आओ, Q into B, तो R into A is going to be left over here. So this is the correct option. ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हैं और दोनों इक्वल टू के डिफरेंट एंड्स पर होंगे. तो इफ यू ब्रिंग इट ऑन दिस साइड तो देयर इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव साइन over here. ठीक है, so I hope you understood the question and the concept a bit. अच्छा जी, question 2 states that the diagrams show 4 identical objects. Each object is acted on by only the forces shown. Which diagram shows an object in equilibrium? So again, for an object to be in equilibrium, resultant force should be 0 and resultant moment should be 0. So upward force is equal to downward force and clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. अच्छा, if you see this, तो upward force is equal to the downward force तो है, तो first condition तो satisfy हो जाती है, मगर second condition satisfy नहीं होती क्योंकि these are not in the same line. ठीक है, ठीक हो गया जी. दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. देन सेकेंड अगर हम देखें तो यहां पर आपको पता चलेगा कि अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स ही इक्वल नहीं है. ऊपर देयर इज अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन्स, डाउनवर्ड्स देयर इज अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन्स. सो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया क्योंकि वी से दैट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स फॉर समथिंग टू बी इन इक्विलिब्रियम. तीसरा जो कंडीशन है वो ये है कि यहाँ पे 3 फोर्सेस हैं. ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस तो कैंसिल हो जाएंगी और फिर ये आपको मोमेंट प्रोड्यूस कर देगा. ठीक है, सो इट इज इन इक्विलिब्रियम, तो मोमेंट तो प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए और इसका बैलेंसिंग फोर्स भी नहीं है. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट ऑप्शन. अब अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर 20 न्यूटन्स हैं और यहाँ पे भी 20 न्यूटन्स है. सो अपवर्ड फोर्स इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द डाउनवर्ड फोर्स. और अगर आप ये देखोगे तो ये यहाँ पर कोई मोमेंट भी प्रोड्यूस नहीं होगी. ठीक है, ये मोमेंट कैंसिल हो जाएगी और कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होगी. सो डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट. ठीक है जी, यहाँ पे अगर आप देखते तो यहाँ पर इसने रोटेट कर जाना था. ये तो दो ऊपर की मोमेंट्स जो है वो तो कुछ भी नहीं करती ना, वो तो आपके ऑब्जेक्ट को ऊपर को पुश कर रही हैं. यहाँ पर भी यही है कि ये फोर्स तो आपको कुछ कर नहीं रही है और ये दोनों आपको बैलेंस कर रही हैं. सो दैट इज व्हाई ये एक इक्विलिब्रियम में है ऑब्जेक्ट. ठीक है जी. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. Forces are applied to 4 identical objects. The length of each arrow indicates the magnitude of the force. Which object is in equilibrium? Now, if we see, we already know that upward force, downward force,
clockwise movement, anti-clockwise movement for something to be in equilibrium. ठीक है जी. अगर आप ये देखो तो ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं. ये दोनों फोर्सेस opposite in direction, equal in magnitude है, but they are not in the same line. So they are going to create a moment. ठीक है, ये दोनों तो cancel हो जाएंगी, but these are going to create a moment. So option A will not be the correct answer. ठीक है. If you see this, तो अब अगर आप option B देखो, तो ये force दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है. दे दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है. दे आर इन द सेम लाइन. सो कोई भी रोटेशन कॉज नहीं होगी, इसलिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन. अब आप सी देखो तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, बट दे आर नॉट इन द सेम लाइन. तो ये इस तरफ रोटेट कर जाएगा और ये भी इस तरफ रोटेट कर जाएगा. ये यहाँ रोटेट कर जाएगा या वो वहां कर जाएगा. यहाँ पर दे आर इन द सेम लाइन, मगर अपवर्ड फोर्स इज नॉट इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स. बोथ हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स. ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. A uniform rod rests on a pivot at its center. The rod is not attached to the pivot. Forces are then applied to the rod in 4 different ways as shown. The weight of the rod can be ignored. Which diagram shows the rod in equilibrium? So for the rod to be in equilibrium, resultant force is equal to 0. Resultant moment is equal to 0. So which one is? अच्छा, यहाँ पर अब you see that the forces are okay. So तो यहाँ पे ऑप्शन ए में there is a 100 Newton force over here that is creating a clockwise moment, and there is a 100 Newton force over here which is creating an anti-clockwise moment, और ये दोनों moments एक दूसरे को balance कर देंगी and A is going to be in equilibrium. If we see at the option B, तो ये 100 Newtons और 100 Newtons है, और this kind of arrangement will make the rod move upwards. ठीक है, so this is not going to be in equilibrium. ये raise कर देगा रॉड को, ये ऊपर लेके चला जाएगा. फॉर ऑप्शन सी अगर आप यहाँ पर देखो तो दिस इज गोइंग टू गिव यू यहाँ पर एक जो ये ऑप्शन है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, और ये ऑप्शन जो है ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है. तो देयर इज नो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट टू बैलेंस दीज क्लॉकवाइज मूवमेंट. सो इसलिए यहाँ पर रोटेशन होगा ही होगा. सो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है. अगर आप डी में देखो तो अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस ही बैलेंस्ड नहीं है. नीचे आपके 100 न्यूटन्स है और ऊपर नीचे आपका 200 न्यूटन्स है और ऊपर आपका 100 न्यूटन्स है. तो ये फोर्सेस ही बैलेंस नहीं हुई हैं, तो डी कांट बी इन इक्विलिब्रियम. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर. So moving to question number 5, a uniform beam is pivoted at the center and two identical masses x and y are placed so that the beam balances. A smaller mass is then added to the position as shown. How can the masses be positioned so that the beam balances again? Okay, now the system that is given to us, we know that it was in equilibrium as it was balanced. So it was equilibrium in the first place when the two masses x and y were placed in these places. But when a smaller mass is placed on this beam, the system is no longer in equilibrium. So now we need to bring it to the equilibrium once again. Okay? How are we going to do so? We have been given 4 options, but we need to understand the system in order to see that which option is the correct one. Acha ji, for the condition for equilibrium in this system would be clockwise movement is equal to anti-clockwise movement. ठीक है, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे फोर्सेस की बात नहीं हो रही, इसलिए दूसरा कंडीशन अभी हम लेकर नहीं आएंगे. सो जस्ट टू सी, अब हमें ये पता है in this system to make clockwise is equal to anti-clockwise, we have to increase the clockwise movement. ठीक है, अगर हमें clockwise movement increase करना है तो we will move y away from the pivot. ठीक है, we know that movement अगर आप
यहाँ से डिस्टेंस इंक्रीज करें फ्रॉम द पिवट तो मोमेंट आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज गिविंग यू क्लॉकवाइज मोमेंट एंड दीज टू आर गिविंग यू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, ठीक है। तो ये वाला अगर आपको क्लॉकवाइज मोमेंट इंक्रीज करना है तो आपको एक्स को पिवट से दूर करना पड़ेगा, और अगर आपको डिक्रीज करना है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट तो एक्स को और स्मॉलर मास को पिवट के करीब लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हेन वी एस्टैब्लिश दिस दैट टू इंक्रीज clockwise movement we have to move y away from the pivot and to decrease anti-clockwise movement we have to move the mass and x towards the pivot. Once we've established that, तो अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें ऑप्शंस क्या दी जा रही हैं। Move x away from the pivot. If we will move x away from the pivot now, so this is going to increase anti-clockwise movement. We need to decrease this anti-clockwise movement. So this is not going to be the correct option. If we look at the option B, so it says that move x towards the pivot. Okay, we've established that we have to decrease the anti-clockwise moment, and for that we have to move this x and small mass towards the pivot. So this is correct, but we should look at the other options as well. So option C states that move y away from the pivot, towards the pivot. We've established the fact that we have to increase the clockwise moment, and to do so we have to move y away from the pivot. So this is also not going to be the correct answer. अब वो कहते हैं ऑप्शन डी में कि move the small mass away from the pivot. हमने establish कर दिया था कि डिक्रीज करना है हमें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और इसके लिए हमें m को और x को टुवर्ड्स द पिवट मूव करना पड़ेगा, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सो B इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। आफ्टर वी अंडरस्टूड दिस सिस्टम वी नो दैट वी हैव टू मूव x टुवर्ड्स द पिवट, दिस विल डिक्रीज द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और इस तरह से इक्विलिब्रियम में दोबारा ये सिस्टम आ जाएगा, ठीक हो गया जी। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. The diagram shows the minimum force F1 acting vertically on a lever required to lift a heavy log of weight W. Okay, the log needs to be lifted by a smaller force than F1. The diagram shows the changes tried. Each diagram has one change from the original diagram. In each case, F2 is the minimum force required to lift the log. Okay, so let's move downwards ताकि हमारे पास सारे diagrams इकट्ठे एक ही glance में हमें नजर आ जाएं. So now we see that this is the downward force that the log is गिविंग, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है ताकि इस लॉग को लिफ्ट किया जा सके. ये उसका परपेंडिकुलर फोर्स है फ्रॉम द पिवट, ठीक है। तो अगर आपको फोर्स को मिनिमाइज करना है देन दिस फोर्स, तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं. अब आप जो टॉर्क को कम करते हैं, ये जो ये वाली फोर्स है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसको टॉर्क भी कहा जाता है, उसकी कंडीशन क्या होती है इफ यू नो. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताती हूं कि ये एक डोर है, इसका पिवट इसके हिंजेस में होता है, ठीक है, और यहाँ पर नॉब होता है जहां पे हम टर्निंग इफेक्ट अप्लाई करते हैं ऑफ फोर्स, और फिर ये डोर खुलता है, ठीक है। हम टर्निंग इफेक्ट क्यों अप्लाई करते हैं? ताकि दरवाजे को खोला जा सके. सो जितना इस डोर नॉब का डिस्टेंस इसके पिवट से ज्यादा होगा तो हमें कम से कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। यही डोर अगर यहां हो, इसका पिवट इसके हिंजेस में हो और डोर नॉब यहां पर लगा हो रादर देन दिस, अब आप देखो कि इसका डिस्टेंस
has decreased from the pivot, जहां हम force apply कर रहे हैं, that perpendicular distance from this force चेंज हो गया है और कम हो गया है, तो यहाँ पे फोर्स हमें यहाँ से बहुत ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी इस सिस्टम से, ठीक है। तो जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवट से कम होता जाता है, फोर्स उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है टू डू दिस वर्क, ठीक है। तो हमें अब ऐसा कुछ करना है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट इंक्रीज हो जाए ताकि जो फोर्स हम इसको उठाने के लिए अप्लाई करें वो डिक्रीज हो जाए, बिकॉज वी नीड अ मिनिमम फोर्स फ्रॉम F1, ठीक है। इससे हमें फोर्स रिड्यूस करनी है, ठीक है। तो अब अगर हमें ये सिनेरियो चाहिए तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट शुड इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि अगर डिक्रीज होगा तो फोर्स तो ज्यादा हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। इफ यू अंडरस्टूड दिस, तो अब हम यहां पर अपने ऑप्शंस देखते हैं ना। ऑप्शन जो P वाला है उसमें दे से दैट वी हैव इंक्रीज्ड द लेंथ ऑफ द लिवर टू द राइट ऑफ द पिवट। अब ये जो लिवर है इसकी लेंथ पहले अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पर 4 सेंटीमीटर्स थी, तो अब उन्होंने इस लिवर की लेंथ 6 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल कर दी है और टुवर्ड्स द राइट उसको इंक्रीज किया, इस साइड पे नहीं किया, इस साइड पे किया। सो व्हाट हैज दिस डन? Increasing the length of the liver to the right has increased the perpendicular distance from the pivot to this force, ठीक है ना। perpendicular distance इस force से pivot तक increase हो गया है। So when we say that the distance increases, तो force जो है वो डिक्रीज हो जाती है। सो P जो है वुड बी आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, फ्रॉम दीज ऑप्शंस। अब हम Q और R को भी देखते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। अब वो ये Q में कहते हैं दैट दे हैव अप्लाइड द फोर्स परपेंडिकुलर टू द लिवर। अब जितना परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होगा फ्रॉम द लिवर, तो उतना ही फोर्स आपको कम से कम अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज over here the force has been applied perpendicular to the liver and we know that force moment जो है वो force into perpendicular distance होता है। तो यहाँ पर ये direct proportion में है from the perpendicular distance, तो obviously this is also going to lessen the force, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर force की बात कर रहे हैं। तो मोमेंट ओवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा जब ये यहां जाएगा, तो डिस्टेंस आप जितना इंक्रीज करोगे उतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो फोर्स डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इस वजह से Q भी हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स R, उन्होंने इंक्रीज कर दिया है डिस्टेंस फ्रॉम द लॉग टू द पिवट। अब ये करने से क्या हुआ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the pivot to the force has decreased. अगर perpendicular distance decrease करेगा तो force is going to increase, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मोमेंट का force into distance होता है और यहाँ पे हमने force को करना है, तो यहाँ distance जो force है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बजाय इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में चला गया, तो डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और हमें फोर्स को डिक्रीज करना है, तो R इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट। सो हमारा ऑप्शन B इज गोइंग टू बी करेक्ट विच स्टेट्स दैट P एंड Q ओनली जो है फोर्स को वो रिड्यूस करेंगे। ठीक हो गया जी। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 7. The diagram shows 4 beams, each of negligible weight and freely pivoted. Which beam is not in equilibrium? Okay. अगर हमें इक्विलिब्रियम में चेक करना है बीम्स को, तो हमें मालूम है कि रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए, यानी अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स होना चाहिए।
और रिजल्ट इन मोमेंट जीरो होना चाहिए, यानी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होना चाहिए. तो अगर हम यहाँ पर मोमेंट कैलकुलेट करें फॉर द क्लॉकवाइज फोर्स, तो दैट वुड बी 6 into 1, because 6 is the force being applied and 1 is the perpendicular distance from the pivot of this force. So ये clockwise moment जो है वो 6 के इक्वल है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो भी 6 के इक्वल है. ठीक है, तो ये बीम तो फिर इक्विलिब्रियम में होगी. ठीक है, सो ए कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो क्लॉकवाइज मोमेंट है हमारा वो है 6 into 2, that is 12, because clockwise moment is force into the perpendicular distance from the pivot. और यहाँ पर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देखें तो वो 6 2s are 12 है अगेन. तो ये तो बैलेंस है, so this cannot be in equilibrium. This system is also says this system is in equilibrium. हमें चाहिए a beam that is not in equilibrium. So अगर हम ऑप्शन सी देखें तो इसका क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो 3 into 2 6 है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो 3 into 1 is 3. सो यहाँ पर बैलेंसिंग नहीं है. सो हम कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, पर हम डी ऑप्शन भी अपना देख लेते हैं. डी ऑप्शन के लिए दो फोर्सेस क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रही है और एक फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कर रही है. तो क्लॉकवाइज मोमेंट वुड बी इक्वल टू 2 into 1 प्लस 2 into 2, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 1 plus 1 फ्रॉम द पिवट और इस फोर्स का 4 का डिस्टेंस इज 1 मीटर. तो यहाँ पे 4 plus 4 is going to be 8 और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है हमारा वो इस 4 2s are 8 as well. सो ये भी इक्विलिब्रियम में है. सो ऑप्शन हमारा सी है, दैट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. ठीक हो गया जी? आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. This states that two boys of equal weight sit on one side of the seesaw. Their father of weight 100 newtons sits on the other side. The seesaw is balanced and being used so that it moves up and down. During one part of the cycle, the father descends through a distance of 40 centimeters. यानी वो आगे को आ गया 40 centimeters. At the same time, the boy nearest to the pivot rises through 20 centimeters while the other boy rises through 80 centimeters. What is the weight of each boy? Okay, now first understand the whole scenario, the whole system that's been given to us. Okay, now the father is exerting a force due to his weight that is 1000 newtons. ठीक है जी, ये उसका फोर्स है और वो आपको बताते हैं कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट इज 40 सेंटीमीटर्स. ठीक हो गया जी? नाउ दीज टू बॉयज हैव equal weights, so they both are applying the same forces. ठीक है, upward direction में हो, downward direction में हो, that actually doesn't matter much at this moment. और वो कहते हैं कि the boy that is closer to the pivot rises through 20 centimeters. तो उसका distance from the pivot is 20 centimeters and the boy that is further away, उसका distance pivot से they've told us is 80 centimeters. ठीक है, तो हमें weight of each boy find करना है. Now we know that for example हम कहते हैं कि father जो है उसका ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं और इनका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है और इनका इन दो बॉयज के वेट की वजह से देयर इज अ क्लॉकवाइज मोमेंट. एक्सक्यूज मी. सो अब हम क्या करेंगे कि क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लिखेंगे. ठीक है, फॉर क्लॉकवाइज मोमेंट द फोर्स दैट इज बीइंग अप्लाइड इज 1000 न्यूटन्स. सो अच्छा, हम इसको पहले ये भी लिख लेते हैं. F1 है ये, ठीक है, ये F2 है और ये F3 है. ठीक है, तो F1 into the D1 is equal to F2 into D2 plus F3 into D3 है. ठीक है, तो F1 जो फोर्स है 1000 न्यूटन्स का, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट 40 सेंटीमीटर्स है एंड आप इसको कन्वर्ट करके 0.40 भी कर सकते हो मीटर्स में.
और आपको इनको भी करना पड़ेगा। और यहां आपको दोनों केसेस में फोर्सेस नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि बोथ द बॉयज हैव इक्वल वेट्स, ठीक है। तो आप इस फोर्स को कॉमन ले सकते हो, ठीक है। दैट इज F2 एंड 3 को आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। इसको हम खाली F ही कर देते हैं। और अगर आप इसको कॉमन लो तो D2 प्लस D3 रह जाएगा। तो 1000 into 0.4 would be 400, ठीक है, as your moment, that is Newton meters। अच्छा, और यहां पे फोर्स हमको नहीं पता। डिस्टेंस जो पहला है फ्रॉम द पिवट वो 0.20 है, और जो दूसरा डिस्टेंस है वो पिवट से वो 0.80 है। तो दिस इज गोइंग टू गिव यू 1 and this is F. So 400 newtons is the weight of both the boys, ठीक है। अब हम अपनी ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें हमें पता चल रहा है द वेट ऑफ द बॉयज इज 400 न्यूटन्स। ठीक हो गया जी। आप इसको अलग-अलग भी कर लो, कोई मसला नहीं। आई जस्ट मेड द वर्क इजियर कि इनको कॉमन ले लेते हैं, वरना आपको फिर दोनों को वहां मूव करना पड़ेगा और सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसको इतना करने की बजाय अगर आप उन्होंने कह ही दिया है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो देन वी कैन टेक देम एज कॉमन ना, तो उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। The diagram shows a meter rule MN on two supports P and Q. Two loads are placed on the rule as shown. The rule rests steadily on supports, which would be P and Q. Okay, total moment about M and total about N. ठीक है। When they say that the rule rests steadily on support, so it means that it is not giving any moment and it is in equilibrium. So when we say that something is in equilibrium, so we know that the resultant moment is 0. So there would be no moment about M and there would be no moment about N. ठीक है? So the moments about M and M would be 0. ठीक हो गया जी? Keep an eye on these words. ठीक है? These give you a perspective into your answers. Okay, moving forward. A wheelbarrow has a weight W of 140 newtons. Which vertical force F is needed to support the wheelbarrow in the position shown? Okay, this is the wheelbarrow. This is the weight W of 140 newtons. ठीक हो गया जी? And this would be the pivot because every measurement is being taken from here. So this is going to be our pivot. First things should be the first thing that you should do in turning effective force question should be you should locate a pivot. Then you should locate perpendicular distances from the pivot to the forces and then go further on into the question. ठीक हो गया जी? अच्छा जी, अब इसके अंदर आपको ये बताया गया है, इसके अंदर आपको ये भी बताया गया है कि दिस इज 0.8, इस फोर्स का डिस्टेंस जो है वो 0.8 है। सो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स ये जो फोर्स है F, वर्टिकल फोर्स दैट वी नीड टू फाइंड, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि 1.4 मीटर्स है। ये जो फोर्स W है, which is actually the weight of the wheelbarrow that is acting over here, इसका डिस्टेंस हमें पिवट से नहीं पता, बट हमें पता है कि यहां से यहां तक 1.4 है
और फिर यहां से यहां तक 0.8 है। तो अगर हम 1.4 में से 0.8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट वुड बी 0.6 मीटर्स। अच्छा जी, अगर हमें एफ फाइंड करना है तो हमें पता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है और ये क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है। तो क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट हमारा है जी 140 फोर्स है, F1d1 is equal to F2d2. 140 into that perpendicular distance is 0.6 meters, and the force F2 that we have to find has a perpendicular distance of 1.4 from the pivot. So to find the force, we will take this perpendicular distance to the other side, and the answer would be 60 newtons. So this force F is equal to 60 newtons. A is the correct answer. Okay, moving forward, a metal rod of length 80 centimeters is pivoted at point O. Its center of mass is at its midpoint. 4 pulley wheels are indicated by letter P. The rod is in equilibrium as shown. What is the weight of the rod? Okay. Achha, if we look at this question now, तो I always seem to think कि भाई बहुत ये जो सिस्टम जो भी इन्होंने बनाया है ना, इसकी बहुत ही डिफिकल्ट सी डायग्राम दी हुई है, फिगर दी हुई है। दिस फिगर कैन बी सिंप्लीफाइड इजीली, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस फिगर को ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई डोंट हैव अ रूलर, मुझे इसको फ्री हैंड ही ड्रॉ करना पड़ेगा। हम कहते हैं जी ये हमारी रॉड है, मेटल रॉड, ठीक है। पिवट हमारा यहां है, पिवट से 20 सेंटीमीटर्स इधर एक फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। और ये जो है 0.10 kgs है, तो इसको आपको न्यूटन्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। वेट इज इक्वल टू mg, तो वेट इज इक्वल टू 1.10 इंटू ये, क्योंकि दिस इज एन ओल्डर क्वेश्चन, तो g की वैल्यू 10 ही यूज की जा रही होगी मोस्ट प्रोबेबली, तो ये 1 न्यूटन हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी यही वेट मैस है, तो इसका वेट 1 न्यूटन ही होगा, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है, फिर यहाँ 20 सेंटीमीटर्स छोड़ के एक वेट अप्लाई, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि 1 न्यूटन का है, ठीक है। F1 F2 कर दीजिए इसको, ठीक है। हमको ये पता है कि द ओवरऑल लेंथ ऑफ द रॉड इज 80 सेंटीमीटर्स, ठीक हो गया। 80 सेंटीमीटर्स का मतलब है कि जो इसका मिड पॉइंट है वो 40 सेंटीमीटर्स पे होगा, है ना। तो अगर 20 सेंटीमीटर्स यहां है तो 20 सेंटीमीटर्स ही यहां होगा, ठीक है। तो ये 40 बन जाएगा, 20 सेंटीमीटर्स इधर होगा, और फिर ये 20 सेंटीमीटर्स, ये 80 की लेंथ आपको पूरी मिल जाएगी, ठीक हो गया। और उन्होंने आपको ये भी बताया हुआ है कि द सेंटर ऑफ मास इज एट द मिड पॉइंट, यहां पर जी उसका सेंटर ऑफ मास है। तो अब आप यहां आप W कर लेंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ द मास, ओके 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 ओके, द वेट ऑफ द रॉड ही हमें फाइंड करना है, यानी ये जो W है। अच्छा, अब ये दोनों जो फोर्सेस हैं, F1 F, इसको हम F3 कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये एक जगह एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स दे रही हैं, ठीक है। और ये जो है जो वेट है वो क्लॉकवाइज आपको मोमेंट दे रहा है, ओके। तो अब हमने इस फिगर को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। हमको पता है कौन से मोमेंट्स कहाँ पर हो रहे हैं, कौन सा फोर्स कितने न्यूटन्स का है, कौन सा फोर्स का क्या डिस्टेंस है, ठीक है। तो पिवट हमारा यहाँ है, ठीक है।
तो जो ये F3 है फोर्स, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट 40 सेंटीमीटर होगा, वो वैसे भी मिडल पे है तो हमको पता ही है। ये जो फोर्स F2 है उसका जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर्स पे है, और चूंकि ये यहाँ है तो 20 प्लस 20 प्लस 20, तो ये F1 जो है वो 60 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द पिवट है। हमको पता है कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स वुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना क्लॉकवाइज मोमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स लिख लेते हैं। क्लॉकवाइज मोमेंट्स हमको पता है कि F3 यानी W into the perpendicular distance from the pivot is 40, और एंटी क्लॉकवाइज दो हमारे मोमेंट्स हो रहे हैं, दो फोर्सेस वो दो मोमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। F1 which is 1 Newton into 60 centimeters plus 1 Newton into 20 centimeters, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर निकल आएगा। 60 plus 20 is 80 और F3 into 40, तो वेट या फोर्स हमारा जो 3 था उसको निकालने के लिए 80 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे, और दिस इज गोइंग टू बी 2 न्यूटन्स, ठीक है। तो द वेट ऑफ दिस रॉड बेसिकली इज द ऑप्शन सी विच इज 2 न्यूटन्स। अपने फिगर्स को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, अपने लिए सिंप्लीफाई करो, मुश्किल करने की अपने आप को जरूरत नहीं है। हमेशा इस चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया करो। ये मुझे एटलीस्ट लग रहा था, मुझे नहीं पता मे बी आप लोगों को नहीं लग रहा हो कि ऐसे ही जो है वो ये कॉम्प्लिकेट हुआ था, तो इसको अनकॉम्प्लिकेट कर देने से आसानी हो जाती है, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा अनकॉम्प्लिकेट कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। A beam is pivoted at one end as shown. The beam weighs 6 newtons and its weight acts at the point X, 40 centimeters from the pivot. A force of 4 newton is applied to the beam, causing it to balance horizontally, यानी equilibrium में आ गया. In which direction and where is the 4 newton force being applied? Okay. Now we know one thing, that यहाँ पर एक फोर्स जो वेट उसका है वो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब फोर्स और वेट आप दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। वो 6 न्यूटन है और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट 40 सेंटीमीटर्स है, ठीक है क्या। हमें पता है कि एक और फोर्स भी है जो यहाँ पर अप्लाई हो रही है और वो इसको बैलेंस करी। अब अगर ये डाउनवर्ड फोर्स है तो दैट फोर्स हैज टू बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। जाहिरी बात है, अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में आई है तो अपवर्ड फोर्स जो है वो इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स होगा ना, और जो क्लॉकवाइज मोमेंट है वो ही इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा ना। तो अगर एक फोर्स डाउन में ऑलरेडी अवेलेबल है तो ये फोर्स ऑब्वियसली वुड बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और ये अगर आपको क्लॉकवाइज मोमेंट दे रही है तो वो फिर एंटी क्लॉकवाइज दे रही होगी, ठीक है। इतनी बात हमको मालूम है। तो हम क्या करते हैं कि लॉजिकली स्पीकिंग हम ये ए और बी को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि ये डाउनवर्ड फोर्स है, तो इसको अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में ला रही होगी तो वो एक अपवर्ड फोर्स होगी, ठीक हो क्या ना। तो ये तो नहीं हो सकता। अब जब हमारे पास सी और डी ऑप्शंस बच गए तो वो कहते हैं कि अपवर्ड्स एट 20 सेंटीमीटर्स टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। अपवर्ड्स 20 सेंटीमीटर्स टू द लेफ्ट ऑफ एक्स वुड बी समवेयर हियर इन द मिडल, ठीक है। 4 न्यूटन्स तो फोर्स हमें पता है, और पिवट से ये 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस 40 है और अगर ये लेफ्ट टू द एक्स है 20 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है कि पिवट से उसका डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। अब अगर हम इसको निकाल कर देखें तो मोमेंट, अच्छा पहले हम ऐसा करते हैं ना, क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। दैट वुड बी F1 into D1, दिस इज आर F1, ठीक है, और इसको हम F2 कर देते हैं। तो
F1 is 6 न्यूटन्स एंड जो उसका डिस्टेंस है अगर हम उसको कन्वर्ट कर दें इनटू मीटर्स तो 0.4 हो जाएगा, तो ये 2.4 हो जाएगा, ठीक है। तो सो फॉर सी अगर हम इसका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल रहे हैं तो हमको पता है कि उसका 4 न्यूटन फोर्स है और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट 20 है या 0.2 है क्योंकि हमने कन्वर्ट किया है, तो 0.8 न्यूटन मीटर्स इज गोइंग टू बी द मोमेंट, ठीक है। और जो ऑप्शन डी है अगर हम वो एक्सप्लोर करें तो वो होगा 4 into 0.20 or 20 centimeters to the right. If we go 20 centimeters to the right, तो pivot से distance 20, 60 centimeters हो जाता है या 0.6 हो जाता है, ठीक हो गया ना। ये मैंने यहाँ क्यों लिख दिया 20 centimeters है तो ये 0.6 का हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू गिव यू 2.4 न्यूटन मीटर्स। अब आप देखो कि इससे 0.8 आ रहा था, दिस इज नॉट गोइंग टू बैलेंस अ मोमेंट ऑफ 2.4 क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ 2.4, तो ये 2.4 क्लॉकवाइज है, ये 2.4 एंटी क्लॉकवाइज है, तो फिर इसका मतलब है कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो ऑप्शन डी है। एलिमिनेशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। हमने दो ऑप्शंस को फटाफट निकाल दिया बिकॉज टाइम इज ऑफ द एसेंस when you are solving your paper। 40 minutes होते हैं, कितने सारे questions होते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एक टाइम पे कितना तक स्पेंड करो, तो एलिमिनेशन कर लो तो जल्दी जल्दी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल MN pivoted at its midpoint P, ठीक हो गया जी। Two weights W1 and W2 are hung on either side of the pivot. Okay. The rule remains balanced. इसका मतलब है कि जी ये equilibrium में है. Which row is correct? Direction of resultant moment about point M and direction of the resultant force on the rule. अब चूंकि हम कह रहे हैं कि ये rule balanced है और equilibrium में है, तो इसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स भी 0 है और रिजल्टेंट मोमेंट भी 0 है, ठीक है। तो फिर इसका ऑप्शन जो है वो डी आंसर होगा क्योंकि ना तो कोई रिजल्टेंट मोमेंट है पॉइंट एम पे, ना ही कोई रिजल्टेंट फोर्स है ऑन द रूल दैट इज एक्टिंग, ठीक है जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। 3 simple machines are shown. Which machines are an application of the moment of force? Wheelbarrow is an application of moment of force. Cutting string with scissors is an application of moment of force. Screwing a screw with a screwdriver is moment of force. So 1, 2, 3 is going to be the answer. इसके एग्जाम्पल्स याद करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप नोट्स पढ़ते हो कोई भी, वहां पे एग्जाम्पल्स आपको जरूर मेंशन किए गए होंगे, उनको पढ़ लो और उनको याद रखो ताकि इस किस्म के क्वेश्चंस में मार्क लूज ना करो, ठीक हो गया जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। A spring which obeys Hooke's law। अच्छा, ये हुक्स लॉ स्प्रिंग कांस्टेंट की बात आ रही है तो आई थिंक वील स्किप इट फॉर नाउ, क्योंकि ये हमने अभी पिछले डिफॉर्मेशन के टॉपिक में सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में इसका कोई काम नहीं है। सो मूविंग ऑन, कभी कभी कोई क्वेश्चन इधर उधर से आ जाता है। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। A 20-meter long uniform bridge of weight 100 kilonewtons is supported at each end by the pillars as shown. The pillars exert a force of T1 and T2 on the ends of the bridge. What are the values of T1 and T2 when a van of 24 kilonewtons is on the bridge 5 meters from the left-hand pillar? अच्छा जी. Now, first of all, we need to look for the pivot. ठीक है? तो हम, मुझे लगता है यहाँ से क्योंकि सारी मेजरमेंट दी जा रही हैं तो हम इस वाले पिलर को अपना पिवट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ओके, नाउ फॉर समथिंग टू बी इन इक्विलिब्रियम वी नो देयर आर 2 कंडीशंस, रिजल्टेंट फोर्स 0, रिजल्टेंट मोमेंट 0, अपवर्ड फोर्स
downward force, clockwise moment, anti-clockwise moment. ठीक है, ये हमको पता है. Okay, so the upward forces here are T1 and T2, and the downward force are 24 kilonewtons and 100 kilonewtons. ठीक है, और अगर हम इसको डील करें तो और हम T1 पिलर को अपना pivot लें, तो we can see that 24 kilonewtons and 100 kilonewtons give us clockwise moment, and T2 gives us an anti-clockwise moment. So as this is in equilibrium, so we can say that clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. और हम क्या करेंगे, 24 किलो न्यूटन्स वाली ये जो है ये पिवट से 5 मीटर्स है, ये उन्होंने हमको बताया हुआ है. और चूंकि वेट जो है वो यहाँ पे मिडिल में एक्ट कर रहा होगा, तो ये 10 मीटर्स बन रहा होगा फ्रॉम द पिवट. सो वी नो दैट 24 किलो न्यूटन्स इंटू 5 होगा, प्लस 10 इंटू 100 होगा, ये दोनों चीजें. ठीक है, और T2 इंटू 20 होगा, क्योंकि ये T1 तो बिल्कुल पिवट पर है, तो उसका तो कुछ भी जो उस पर होगा वो एक्ट नहीं कर रहा होगा फॉर द टाइम बीइंग. तो हमको मालूम है कि 120 प्लस 1000 हो जाएगा ये, और T2 के लिए हम 20 को उधर ले जाएंगे, तो वी विल गेट T2 एज 56 किलो न्यूटन्स. ठीक है जी, ये हमें अब पता चल गया है. तो T2 हमारा 56 किलो न्यूटन्स है, तो हमको मालूम है कि इसके साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 68 किलो न्यूटन्स, तो C इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. मगर अगर हम इसको क्या करना, वेरीफाई करना चाहें, तो वी कैन ऑल्सो फाइंड T1 from the rule or condition for equilibrium that upward force is equal to downward force. ठीक हो गया? So we know what are the upward forces and we know what are the downward forces. Upward forces are T1 plus T2 and downward forces जो है वो 24 किलो न्यूटन्स की है और एक 100 किलो न्यूटन्स की है. ठीक है, और T2 हमको पता है कि 56 है, तो ये 124 हो जाएगा, and T1 is going to be 124 minus 56, that gives us 68 kilonewtons. तो हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया है कि if T2 is 56 newtons, तो फिर T1 जो है वो 68 kilonewtons होगा. ठीक हो गया जी? So moving on to the question number 18th. An object is pivoted at point P. The student ties a length of string to a peg on the object. He pulls the string with force F. What is the moment of force F about the point P? Okay, we know that moment जो है हमारा वो होता है force into the perpendicular distance from the pivot. ठीक है, अगर ये pivot है और ये हमारा force है, तो perpendicular distance जो हमारा बनता है that is S. ठीक है, तो F into S is going to give you the moment. ठीक हो गया जी? तो हमारा C is the correct option. और कोई भी आपको चीज परपेंडिकुलर नहीं दे रहा, ये T परपेंडिकुलर नहीं है to the force, ये R परपेंडिकुलर नहीं है, ये Q परपेंडिकुलर नहीं है, तो F into S, S is the only distance that comes from the pivot and is perpendicular to the force F. Okay. Okay, question number 19. The diagram shows a beam lying on the ground. End Q is lifted from the ground by the force F. Okay, and P of the beam remains on the ground. The length of the beam is 3 meters and its weight is 600 newtons. Okay, the center of the mass of the beam is at G and is 1 meter from the end P. What is the size of force F when it just raises Q from the ground? So we have to find this force F. We know that
अब ये आपका पिवट होगा क्योंकि सारी मेजरमेंट्स यहीं से आ रही हैं तो ऑब्वियसली ये पिवट है। जो सेंटर ऑफ द मास उसका है वो मिडल में नहीं है, इट्स 1 मीटर फ्रॉम द पिवट। हमको ये मालूम है कि ये जो फोर्स है इट इज 3 मीटर्स फ्रॉम द पिवट। तो अब हम आराम से कर सकते हैं, वेट तो नीचे हो रहा होगा तो वो क्लॉकवाइज दे रहा होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा होगा। तो अगर हमको ये निकालना है तो हम सिंपल कर लेंगे, इसको हम F1 ले लेते हैं और इसको हम F2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज करें तो ये वेट जो है वो 600 न्यूटन्स का है और ये 1 मीटर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द पिवट, ये F है और इसका 3 मीटर्स है। तो 600 over 3 is going to give us the value of F, which is going to be 200 newtons. So A is going to be our correct answer. Okay. Okay. Moving on to the question number 20. The diagram shows a stand. The stand holds a heavy mass above the bench. Which two changes would definitely make the stand more stable? अच्छा जी, हमको मालूम है कि center of mass, अभी वैसे आपने वो टॉपिक नहीं किया, वो आगे आता है। जब आप बेस को अगर बड़ा कर दें और सेंटर ऑफ मास को लोअर कर दें तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इट्स जस्ट दैट कि अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, आपने इसको ऐसे खड़ा किया हुआ, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो काफी ऊपर चला जाएगा और इसका बेस भी कम चौड़ा है, तो ये ज्यादा चांस है कि गिर जाए। लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को अगर आप वर्टिकली की बजाय हॉरिजॉन्टली प्लेस करते तो इसका बेस ज्यादा हो गया और इसका सेंटर ऑफ मास लोअर हो गया, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो इस केस में भी अगर हम अपने ऑप्शंस पढ़ें तो लोअर द मास and make the base narrower. So base has to be wider, not narrower. Lower the mass and make the base wider. So yeah, ये B जो है वो हमारा correct answer है। Although हम अगले options भी पढ़ लेते हैं। Raise the mass, raising the mass, वो फिर center of mass ऊपर चला जाएगा, तो this is not going to give you a stable stand. Raise the mass and make the base wider. आप base wide भी कर लेंगे और mass को raise कर देंगे तो center of mass raise हो जाएगा, तो ये भी correct option नहीं होगा। दोनों काम आप करेंगे तो वो स्टैंड मोर स्टेबल होगा। ठीक है जी, ओके। सो आई थिंक दिस शुड बी द एंड ऑफ दिस वीडियो। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वी इंशाल्लाह विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, इसके पार्ट बी में। और इफ यू हैव फाउंड एनीथिंग हेल्पफुल और आपको किसी चीज को समझने में आसानी दी है मेरी इस वीडियो ने, तो काइंडली रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।